حکومت کی اور پونے 4 سالوں میں جو معاہدے مالیاتی اداروں سے کیے، جو نالائکیاں ان کی سامنے آئیں، جو چوریاں ان کی ہوئی، جو آئی پی پیز کمپنیاں جو ہیں ان کے اصل مالکان جو کہ کہا گیا تھا کہ یہ دنیا سے انویسٹر آیا ہے، مگر نام دنیا کے دیگر ممالک سے لوگوں کا تھا، اصل میں وہ پاکستانی تھے، اور وہ پاکستانی جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے وہ کون سے پاکستانی ہیں، ان کمپنیوں کے مالکان، اور پھر ڈالروں میں ادائیگی جو اس وقت معاہدوں میں طے کی گئی تھی، کیوں کی گئی تھی، پھر جتنی کیپیسٹی ان کمپنیوں کی ہے اتنا ہی ان کو پیسہ دینے کا، ادائیگی کرنے کا آپ پابند کیوں بنے؟ 75 کمپنیوں میں سے 10 کمپنیاں ایسی ہیں جن کا 2013 میں مسلم لیگ نے جن سے معاہدہ کیا، اور 10 کمپنیاں وہ ہیں یا ان سے معاہدہ کیا گیا جب بجلی کا بحران تھا 2013 میں، لوڈ شیڈنگ انتہا کو تھی، فل کیپیسٹی پہ چلانے پر ان کو راضی کرنے کے لیے 550 ارب یکمشت دیے گئے، جو آج گردشی قرضے جس کو کہا جاتا ہے وہ گردشی قرضے 550 دیے گئے۔ جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کو ختم کیا گیا تو 600 سے 650 ارب کے گردشی قرضے تھے اس وقت، اور جب عمران خان ہٹا تو 2450 سے 2500 کے گردشی قرضے وہ چھوڑ کے گیا۔ اب آ جائیں، جب تک آپ پونے 4 سال کی حکومت کا ملبہ کا بوجھ ان کی پالیسیوں کا ان پر نہیں ڈالیں گے، اور 16 ماہ کی قومی حکومت جس میں 11 جماعتیں شامل تھیں، چلے ان میں زیادہ حصہ مسلم لیگ پر ڈال دیں ان 11 جماعتوں میں سے، مگر آپ حصہ ڈالیں اس پر جتنا اس کا قصور ہے، آپ نگرانوں پر ملبہ ڈالیں جتنا ان کا قصور ہے۔ آج قوم معاف نہیں کرنے کو تیار، قوم کسی طور پر بھی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کھائے کوئی، کرپشن کوئی کرے، بھرے کوئی۔ آج یہ نہیں ہو سکتا کہ مفت بجلی استعمال کرے کوئی، چوری کرے کوئی، اور بھرے غریب، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج یہ فیصلہ کیے بغیر پاکستانی قوم کے جذبات، اندر بڑھتی آگ کو ٹھنڈا اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ان کے پیچھے کیے جانے والے فیصلوں کی وجہ سے یہ حالات بنے۔ بات سیدھی سی ہے کہ آپ پونے 4 سال جنہوں نے حکومت کی، ان کا قصور جتنا ہے پونے 4 سالوں میں بنتا ان پہ قوم کے سامنے لائیں ان چیزوں کو، اور 16 ماہ میں 11 جماعتوں نے جو کچھ کیا ان کو سامنے لائیں۔ آپ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کا قصور اٹھا کے آپ کہیں کہ مسلم لیگ پہ ڈال دیا جائے، اس لیے کہ قوم امید باندھے ہوئے ہے کہ مسلم لیگ کا قائد نواز شریف آئے گا تو ہمیں اس بھنور سے نکالے گا۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جو آج 18 سے 20 سال کا نوجوان ہے اس کو شاید علم نہیں ہے کہ 2008 سے 2013 تک بجلی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر، 25 سے 30 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، تو نواز شریف نے 2013
सालों में 2017 तक बिजली वापर पैदा कर दी, सस्ती पैदा कर दी, अमन कायम कर दिया, मगर उसके बदले क्या हुआ? उसके बदले आप आज कोई कहता है कि फलां गिरफ्तार हो रहा है, फलां छूट रहा है, फलां रिहा हो रहा है। मुझे कोई सरोकार नहीं है कि कौन रिहा होता है, कौन गिरफ्तार होता है, कौन सजा होता है, कौन उसको फैसिलिटेट करता है और उसको रिहा कर देता है। मुझे इससे सरोकार है कि आप बताएं कि मोहसिन पाकिस्तान जो होते हैं उनके साथ सलूक क्यों किया जाता है दुश्मनों वाला? मेरा सवाल ये है, मेरा मुतालबा ये है, मेरा केस ये है कि मुझे बताया जाए कि जिस शख्स ने 2013 में आकर लोड शेडिंग का खात्मा किया, सस्ती बिजली दी, उसने सोलर पे, उसने डैम पे, उसने पाकिस्तानी कोयले से सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबा साजी की और कुछ काम किया। जो मैं बार बार कहता हूं कि एक अदारा अगर खुद एहतसाबी करता है तो उसमें से क्या जो हाजिर सर्विस लोग हैं वो कसूरवार नहीं निकलते? और कसूरवार निकल रेफरेंस फिर क्या आज के मौजूदा इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम जो जस्टिस साहबान हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का केस उस रेफरेंस पे क्या क्या कमेंट्स दिए ये किसी को याद नहीं? क्या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दिया जाने वाला फैसला जिस जस्टिस ने दिया उसको, उसके दिमाग को ये कहा गया इसकी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि इसने आइन को पामाल किया, मगर उनकी सेहत, उनकी तबीयत, उनका जहन बिल्कुल दुरुस्त करार दिया गया जिन्होंने परवेज मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा, आइन में तरमीम करने का जो रिलीफ मांगा भी नहीं था, जो इख्तियार मांगा भी नहीं था, वो भी दे दिया उन जस्टिस साहबान ने। उनका सेहत और दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त करार दिया गया, मगर उसको पागल कह दिया गया जिसने आइन तोड़ने वाले को सजा दी। तो फिर मुझे ये कोई बताए कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा चल सकेगा? क्या बार बार ये खलवाड़ होता रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर आप मुजरिमों को बेनकाब न करें, आप पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तरफ अमलन मुल्क बढ़ता जाए और उन साजिशों को जो तोड़ है, उन साजिशों को ब्रेक भी कोई ना करे और कहे कि मुल्क के अंदर अमन कायम हो जाए? कैसे अमन कायम हो सकता है? मुझे कोई ये बताए कि क्या आज मुझे ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, फेस करें कानून को, तो मुझे कोई बताए कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इंसाफ हुआ था? क्या आला अदलिया ने उससे इंसाफ किया था कि वो कब्र से निकल के इंसाफ मांगे? आज तक लोग कह रहे हैं, लोग पुकार रहे हैं कि वो अदालती कत्ल था, मगर अदालतों से तो आज तक कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मुझे कोई बताए कि क्या नवाज शरीफ के तमाम ऑडियो वीडियो लोगों के सामने आ चुकी, साजिश बेनकाब हो चुकी, बल्कि यहां तक के उन 5 किरदारों ने जिन्होंने ये सारी मंसूबाबंदी पाकिस्तान को डुबोने के लिए की, नवाज शरीफ के इंतकाम में अंधे होकर वो सारे किरदार क्या इतराफ़े जुर्म नहीं कर चुके? और इतराफ़े जुर्म करने के बावजूद आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ कानून का सामना करे, और जिन किरदारों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, उन किरदारों को आप आज भी कटहरे में खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? तो फिर सुन ले, अगर मुजरिमों को, अगर पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करने वालों को आज आप कटहरे में नहीं लाएंगे, हकायक को उनको बताएंगे नहीं, तो फिर 4 रुपए 10 रुपए फ्री यूनिट
इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर जो एक साजिश, एक प्लानिंग के तहत सिविल नाफरमानी शुरू की गई थी, ऐलान किया गया था, वो आज अमलन होता नजर आ रहा है। मैं आज बतौर पाकिस्तानी के ये बात कह रहा हूँ, खुदा के लिए आज के रियासती इदारों के जो सरबराहान हैं, उनकी जिम्मेवारी है, उनके फराइज में ये चीज शामिल है कि पाकिस्तान को डूबने से बचाने के लिए हकायक कौम के सामने रखे जाएं, ताकि ये कौम जो जख्म खुर्दा है, इनके जख्मों पे मरहम रखी जा सके, और वो जो एक झाका दिया जा रहा है कि उसको निकाल दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जाए भाड़ में। ये रियासत का काम है कि रियासत पर हमला करने वालों से सलूक रियासती अदारे क्या किया करते हैं, ये उनका काम है। मगर पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये इस्तेहकाक है, हमारा ये हक है कि हम अदारों से ये कहें, रियासती इदारों से, कि पाकिस्तान के मौसमों से जो सलूक किया गया, जो पिक्चर उनकी पेंट की गई कि ये डाकू हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, ये इंडियन नवाज हैं, ये धोया जाए, ताकि दोबारा भी कोई जुल्मकारी भुट्टो नवाज शरीफ पैदा होकर इस कौम की खिदमत कर सके। वरना जो सलूक आज तक किया जा रहा है, फिर दोबारा कोई इस पाकिस्तान के लिए अपनी गर्दन पेश करने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा कि मौसम के साथ जो सलूक किया जाता है उससे लोग इबरत हासिल करेंगे। अगर आप तोड़ने वालों, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वालों को एक दफा जिस तरह आर्टिकल 6 का मुकदमा परवेज मुशर्रफ पर वो FIR हमने कराई थी, भले उसको सजा न दिलवा सके, मगर एक कदम उठाया था, एक कदम अदारों को जिस तरह खुद एहतसाबी करके उन्होंने उठाया है, दूसरा कदम आवाम को, कौम को मुतमिन करने के लिए उन मुजरिमों के खिलाफ भी, 5 मुजरिमों के खिलाफ 2017 के किरदारों को भी एक तबाह कटहरे में लाएं, ताकि लोग इत्मीनान करके लोग इस मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दें, लोग इस मुश्किल में पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे सके, वरना कोई कुर्बानी नहीं देगा।